ax minus by minus a square, and ab belongs are non-zero. In the equation of straight line perpendicular to the line L and passes to the point where L crosses x-axis. Then equation of L. Perpendicular to this line perpendicular to L and with the equation of straight line perpendicular to L and passing through the point where L cross the x-axis. आपका इक्वेशन दिया गया ax minus by minus a square is equal to 0 perpendicular to line L and passing through the point where L cross the x-axis. L cross the x-axis मतलब ये आपका L को परपेंडिकुलर हो रहा है, तो L क्रॉस द एक्स एक्सिस मतलब ये भी वही पॉइंट पर पास करेगा ना। हाँ सर। ये आपका रिकॉर्ड लाइन, कैपिटल L ले लो, तो कैपिटल L परपेंडिकुलर टू कैपिटल L मतलब दिस इज ax minus by minus a square. This line perpendicular to L and passes to the point where L cross the x-axis. L cross the x-axis मतलब आपका line also cross the x-axis. तो इक्वेशन ऑफ L क्या पूछ रहा है? तो ये x-axis पर इसका पॉइंट क्या होगा? पुट y इक्वल टू 0. y जब 0 करेंगे that implies ax minus a square equal to 0. a into x minus a is equal to 0. a तो 0 नहीं हो रहा है तो x minus a 0 होना पड़ेगा, तो x equal to a. तो दिस इज द a, 0. अब दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड passes through a, 0. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ये लाइन को परपेंडिकुलर एंड a, 0 में पास कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा? Which line perpendicular to this line? So bx plus ay minus a square. Equation of L will be bx plus ay plus another constant equal to 0. हाँ सर. अब this line passes to the point a, 0, तो a, 0 इसको satisfy करेगा. That implies ab plus 0 plus k is equal to 0 implies k is equal to minus ab. तो आपका लाइन क्या हो जाएगा? bx plus ay minus ab is equal to 0. That implies bx plus ay is equal to ab. ab divide कर दो both the sides. Then x by a plus y by b is equal to 1. हाँ सर. जब आप बोल नहीं पा रहे हो ये लाइन को परपेंडिकुलर लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या होगा, तो फिर कैसे करेंगे? कोई भी मतलब
सामने वाले को लगेगा आप लोग को कुछ पता नहीं है, इधर पता नहीं मतलब इधर आपको पता नहीं, नहीं तो टीचर बताया नहीं। दिस इज सो सिंपल थिंग। जब तक ये कंसेप्ट आपको हजम नहीं हो रहा है तो फिर कैसे करोगे हाउ टू टैकल दूसरे मतलब अदर क्वेश्चन। खाली पढ़ने से क्या होगा। Straight line, the straight lines ax plus by plus c, where 3a plus 2b plus 4c is equal to 0 are concurrent at point. इसका एक रिलेशन दिया गया 3a plus 2b plus 4c is equal to 0. तो आप चाहो तो कोई एक को एलिमिनेट करो, जैसे कि a एलिमिनेट करके आप इसमें डाल सकते हो, नहीं तो b को एलिमिनेट करके इसमें डाल सकते हो, नहीं तो c को एलिमिनेट करके इसमें डाल सकते हो, और सीधा सीधा इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, विल गेट योर एक्स एंड वाई वैल्यू। कैसे कंपेयर करोगे, इसमें मेरे यहाँ पे प्लस सी है, इधर 4c है, ट्राई टू मेक दिस वन एज प्लस सी। डिवाइड बाय 4 करें। हाँ, तो डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 1/2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। आप ये दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है, a की जगह a, तो x की जगह क्या मिल रहा है 3/4 3/4 3/4, y की जगह क्या मिल रहा है हाफ। हाफ, c as it is रहा। तो whenever x is equal to 3/4 and y is equal to 1/2, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। यस सर। तो आपका दिस इज द फिक्स पॉइंट। हाँ सर। आप लोग की बात सबसे पीछे चल रही है। So your new chapter is the circle. What is circle? Definition क्या होती if the point are traced from a point that the same distance is there, so it will form a circle. है? It is a locus Locus of of a point equidistant from a point is called a circle. okay. It is a locus of a point Equidistant from it. which moves in such a way that its distance from a fixed point remain constant. Okay. This is the fixed point और ये आपका मूविंग पॉइंट, ये पॉइंट मूव करेगा, ये जितना डिस्टेंस दिलाएगा ये भी उतना ही डिस्टेंस, p is here
which distance remain same. P is here, distance remain same. P is here, distance remain same. तो पॉइंट कैसे मूव कर रहे हैं? तो एक पाथ क्रिएट करेगा. दैट पाथ इज कॉल्ड Circle. ठीक है. एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड Center. center. And fixed distance is called Radius. radius. Okay. From a fixed point is called center and Center. remain constant. Constant distance is called radius. समझा? हाँ सर. तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा. लेट अस टेक moving point is the x comma y and fixed point is the h comma k and radius is the r. तो ये c, तो cp डिस्टेंस क्या हो गया? r. तो cp square is equal to r square. What is the cp square? X minus h the whole square plus X y minus- minus k the whole square. Yes, sir. Is equal to R r square. square. This is the equation of circle with center equation of circle with center h comma k and radius equation of circle with center 0 comma 0 क्या होगा? X square plus y square X equals to square. r square. Minus plus y square equals R square. Equation of circle with center is at origin and radius r. क्या होगा? h k 0 हो जाएगा, so you'll get x square plus y square is equal to r square. Correct? Yes. तो let this is the circle with center 0 comma 0 radius r. So if you consider point p is here, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? r होगा x comma y. तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. तो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. तो OM डिस्टेंस कितना होगा?
OM कितना होगा? X, X. PM होगा Y. Y. Consider this angle is the theta. तो x को कैसे r and theta में लिखेंगे? R cos theta. फिर x is equal to R cos theta plus R and y is equal to R sin theta. r R sin sin theta. ओके, इसको बोलते हैं पोलर पॉइंट. तो एनी पॉइंट on the circle x square plus y square is equal to r square is r cos theta comma r sin theta. This is called polar form. ओके, इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, पोलर पॉइंट बोलते हैं. तो ये भी आप ये कर सकते हो. if question given circle r comma theta, ये जो और इसको सिंबलिकली ऐसे लिखा जाता है r comma theta. In symbol it is written like this, r comma theta. r comma theta means ये पॉइंट क्या हो जाएगा, r cos theta comma r sin theta होगा एंड सर्कल होगा x square plus y square is equal to r square. Yes, sir. So if r comma theta is given, then by default then the point will be r cos theta comma r sin theta and circle is up circle x square plus y square is equal to r square. पोलर फॉर्म बोलते हैं, नहीं तो पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं. आप चेक कर सकते हो, ये जो r cos theta comma r sin theta इसको सेटिस्फाई कर रहा है. हाँ sir. sir. पोलर फॉर्म बोलते हैं, नहीं तो पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं. If r comma theta is given, then the point will be r by default r cos theta comma r sin theta of the circle x square plus y square is equal to r square. सर हम्म. सर अगर ओरिजिन के अलावा मतलब h कॉमा k हो सेंटर तो फिर ये नहीं हाँ. आएगा ना पोलर फॉर्म? नहीं, ये नहीं होगा, उसके लिए अलग होगा. अच्छा. For circle x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. इसके लिए क्या होगा, for circle ये the parametric point है. आंसर क्या होगा, x minus h को r cos theta ले लो, इसको r cos theta रखो, इसको r sin theta रखो, तभी सेटिस्फाई करेगा. हाँ sir. सर तो x क्या हो जाएगा, r cos theta plus h. h plus हाँ r cos theta comma k plus r sin. R sin theta. समझा, ये रखा जाएगा तो आपका ये सर्कल होगा. तो सर उसको भी हम लोग r कॉमा थीटा से डिनोट कर सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, उसमें मेंशन होगा. ओके सर. राइट.
सर स्क्रॉल डाउन करो ना. सर एक लाइन ऊपर. Done. 1 minute, sir. Next.
जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपका x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज योर सर्कल विथ सेंटर h कमा k, रेडियस r, है ना। हाँ सर। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बिकम 0। सर ठीक है। थर्ड टर्म में y नहीं आएगा। 2hx। तो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है सर्कल इज आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन, ये वही इक्वेशन। इफ आई कंपेयर दिस टू, ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आज इट इज, यहाँ पे माइनस 2hx, इधर 2gx, तो क्या Yes, मिलेगा, sir. तो g इज a इक्वल is टू equal to minus। G equals to minus h. ओके, और h इज इक्वल टू माइनस g। Yes, sir. 2 माइनस 2ky इज इक्वल टू 2fy, हाँ sir. तो क्या k F इक्वल टू equals to minus k. माइनस f और f इक्वल टू माइनस k, Yes, sir. और क्या मिला, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह c मिला। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह c मिला। जब इसका सेंटर h कमा k हुआ था तो इसका सेंटर क्या होगा, G comma F. Minus G comma F. माइनस Minus g G कमा comma minus F. माइनस f, मतलब x का जो कोएफिशिएंट था उसका नेगेटिव होगा और हाफ होगा। इसका x कोएफिशिएंट क्या था, 2g, यहाँ पे मिल रहा है माइनस g, मतलब हाफ करके साइन चेंज करोगे। y का भी ऐसे होगा, y का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करके माइनस करो, मतलब साइन चेंज करोगे। सेंटर मिल गया। एंड रेडियस क्या होगा, अब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह c, तो आर स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ही होगा। हाँ sir. एच स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो जी स्क्वायर, एच इज द माइनस जी हाँ का sir. स्क्वायर होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसका रेडियस क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, करेक्ट। हाँ सर। Sir, So this is your general equation of circle. General equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with center minus g comma minus f, radius g square plus f square minus c। ठीक है, सर यस। सर वो एच और के को मतलब जी और एफ में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ माइनस करना है ना, स्क्वायर थोड़ी ना मतलब हाफ थोड़ी ना करना पड़ेगा। हम्म, सर आपने बोला कि वो हाफ भी करना पड़ेगा, मतलब
H और इधर K 2gx मेरा सेंटर क्या मिला? सर बट वो X, h इज इक्वल टू माइनस जी है ना, तो हाँ फिर h माइनस इक्वल टू माइनस जी, तो एच के जगह माइनस जी माइनस एफ लिखा। बट हाँ तो हाउ टू सर गेट सेंटर? अच्छा सेंटर के लिए आपका एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट सेंटर में आता है। कैसे करोगे? जो भी कोफिशिएंट दिया गया एक्स का उसको हाफ करके साइन चेंज करोगे। अच्छा वैसे ओके समझा सर। तो और सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक मिनट, यहाँ पे बिकॉज ऑफ रेडियस, तो ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसमें if g square plus f square minus c greater than 0, then your circle is called a real circle, proper circle होगा। ओके, नहीं g square plus f square minus c इक्वल 0 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन पे होगा, मतलब कुछ नहीं सर, ओरिजिन जीरो। में, ओरिजिन में क्यों होगा? सर्कल ही नहीं होगा सर। नहीं, सर्कल होगा जिसका रेडियस 0 होगा, पॉइंट दैट सर्कल होगा। दैट इज कॉल्ड पॉइंट पॉइंट सर्कल, सर्कल। दैट इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। लेस देन 0 होगा तो नो सच लोकस। ओके, कुछ बुक्स में दिया गया इमेजिनरी सर्कल, बट हम सर्कल को जो ड्रॉ कर रहे हैं वो रियल में कर रहे हैं, इमेजिनरी में नहीं कर रहे, तो डोंट राइट इमेजिनरी सर्कल। ओके, हमें ऐसा कुछ लोकस आपको नहीं मिलेगा, ऐसा फिगर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो 2D 2 डायमेंशन जो होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो रियल सिस्टम होता है, इमेजिनरी इसमें नहीं होता है। ठीक है, सर तो कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसमें वो केस में हम इमेजिनरी बोल सकते हैं, बट इसमें मत बोलो नो सच लोकस, ऐसा लोकस हमें नहीं मिलेगा। सर तो आप तो नॉट अगर पसंद लेस देन 0 होता है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यों करोगे? फुल इक्वेशन को। करेंगे तो क्या होगा? सर्कल बन जाएगा? कोई पूछ नहीं बनेगा ना। सर इक्वेशन गलत होगा ना फिर। हाँ, वो सर्कल आपको नहीं बनेगा ना, हाँ अच्छा सर। ऐसा सर्कल नहीं होता है। तो माइनस मल्टीप्लाई करने से थोड़ी ये पॉजिटिव हो जाएगा, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस ना, तो अब हाँ सर। पॉजिटिव होता है। टोटल में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 0, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ सर। आप x इज इक्वल टू 5 इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, बट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे, क्या फर्क पड़ेगा? प्लस 5 कोई को फर्क माइनस नहीं 5 पड़ेगा। कर दोगे तो ये फर्क पड़ता है, बट इसमें माइनस दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर समझा। समझा सर। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स वाई मीन्स क्या था? सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई को क्या लिखे थे? ax स्क्वायर प्लस हम्म, by ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस by 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यस हाँ सर। सर। कब सर्कल होगा? will be a circle only when x 0 first condition delta is not equal to 0। इसका डेल्टा 0 होगा तो पेयर ऑफ लाइन्स होगा, हाँ सर। हाँ डेल्टा नॉन जीरो होगा तो फिर सर्कल हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन डेल्टा इज नॉट इक्वल 0, सेकंड कंडीशन
a इक्वल टू b होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 रखा, सपोज मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तभी सर्कल होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 होगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 3 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई wrote I said a is equal to b, means coefficient of x square same as coefficient of b square। थर्ड क्या होना चाहिए, नो एक्स वाई टर्म। चेक करो, इसमें कोई एक्स वाई टर्म नहीं है। ठीक है, नो एक्स वाई टर्म, इसका मतलब क्या होगा, h इक्वल टू 0। तो जब ये तीनों सेटिस्फाई होता है देन हम सर्कल मिलता है। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई is called circle if delta is not equal to 0, a equal to b, means coefficient of x square is the coefficient of y square, h equal to 0 means no xy term, x term y term is there, xy term नहीं है। ठीक है, सर right। Done। No, sir, 1 minute.
ओके Only 1 minute. Yes, sir. Done. हो गया आपका जनरल इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल। Equation of circle whose endpoints of diameter are x1, y1 and x2, y2. क्या हो सकता है? ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बी, कुछ कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, x2, y2। इक्वेशन क्या हो सकता है? करोगे? 2 इसका इसका मिड पॉइंट से सेंटर मिड होगा। पॉइंट सेंटर लेके करो। हाँ सर। मिड पॉइंट से सेंटर होगा, कोई डिस्टेंस लेके रेडियस करोगे। यस सर। वो लेंथी होता है, इट इज x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। आप जो बोले वो होगा, थोड़ा लेंथी होगा। इसका आंसर होगा x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। कैसे हो रहा है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो मैं कहीं पे भी एक पॉइंट रखूंगा, आप इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहीं पे भी रखो, तो एपीबी एंगल कितना होगा? 90. 90 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो P the variable point x, y, because of 90, तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ PA into slope of PB is equal to -1। हाँ हाँ सर।
slope of PA into slope of PB is equal to -1. PA का स्लोप कितना होगा? y minus y1 upon x minus x1. y minus y1 upon x minus x1 into PB का स्लोप y minus y2 upon x minus x2 is equal to -1. तो क्या मिलेगा? y minus y1 into y minus y2 is equal to minus of x1 x हाँ minus सर x1 into x minus x2. तो इधर मिल गया ना? सर ठीक है. So this is your equation of circle whose endpoints of diameter are x1 y1 and x2 y2. कोई भी दो पॉइंट दिया जाएगा, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया जाएगा, तो हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, दिस इज अ फार्मूला. नेक्स्ट, position of a point with respect to a circle. आपको एक सर्कल दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, तो क्या हो सकता है? आपको एक सर्कल दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, तो सर्कल S इक्वल टू 0. आप कोई भी सर्कल देख सकते हो. आपका पॉइंट बाहर हो सकता है, आपका पॉइंट इनसाइड ऑफ द सर्कल हो सकता है, आपका पॉइंट अंदर सर्कल हो सकता है. हाँ सर. If C be the center of circle, so for this case, CP distance clearly if point lies outside of the circle, तो आपका CP distance क्या होगा? Clearly more than R होगा. हाँ सर. yes sir Okay. Let us take point in the x1 comma. If point P lies inside of the circle, then CP distance less than R होगा. If point P lies on the circle, then CP distance is equal to R होगा. Correct? Yes, sir. yes sir So let us take circle S. Let S is equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. S को मैंने ये माना. तो सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा? माइनस माइनस g minus f. minus g minus f हाँ minus g comma minus f If point P x1 comma y1 lies outside of the circle, s equal to 0, then आपका CP distance more than R means CP square more than R square. What is the CP square? CP distance कितना होगा? x1 plus g whole square plus y1 plus f whole square is more than R square. R square मतलब e square plus f square minus c. g square plus f square minus c. yes sir Okay, that implies x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1
जी स्क्वायर एफ स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल होगा, ठीक है, जी स्क्वायर कैंसिल होगा, एफ स्क्वायर भी कैंसिल होगा, बचा राइट साइड में माइनस सी, लेफ्ट साइड को प्लस सी कर देंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ सर। करेक्ट कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सर इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी। हाँ, बेटा इसको क्या बोलेंगे? x1 स्क्वायर प्लस जी y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, इसको बोलेंगे s1 ग्रेटर देन 0। अच्छा s1 मतलब क्या है? पॉइंट को सर्कल के ऊपर डाल दो, जैसे L1 L2 बोलते थे, पॉइंट को लाइन के ऊपर डालते थे, ओके ओके। हाँ सर। ओके। तो x1 y1 पॉइंट को लाइन सर्कल के ऊपर डाल दो, s के ऊपर डाल दो, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ठीक है। So हाँ here हाँ S1 greater than 0, where S1 is called, S1 का मतलब क्या होगा? ये, where S1 क्या मिला? CP square minus R square. This is the CP square minus R square ना? ये CP square greater than R square, तो CP square minus R square greater than 0. हाँ तो सर। ये S1 जो मिला वो CP square minus R square, where S1 is the CP square minus R square, which is called power point, which is called power point और power point और power, ओके, इसको भी power भी बोलते हैं। तो मीन सर CP, जो हाँ, सर ये जो फॉर्मेट में रहेगा उसको बोलते हैं ना पावर पॉइंट। नहीं नहीं, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, अच्छा ओके सर। जो पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल CP square minus R square, if C, that is S1, S1 is called power point, CP square, in fact CP square minus R square is called power point. If power point more than 0, आपका point lies outside of the circle. If power point equal to 0, ऑन दे सर। on the circle. If power point less than 0, point lies inside of the सर circle. सर ठीक है, तो सर एस क्या है? सर्कल लिखा है ऐसी ना, कोई 0 क्या है सर? सर्कल लिखा ना इस, हाँ सर ओके। if CP square minus R square is equal to 0, then point or S1 is equal to 0, then point lies on the circle. मतलब सीधा सीधा हम पॉइंट को क्या करेंगे, सर्कल के ऊपर डालेंगे, इक्वल 0 होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, लेस देन 0 होगा तो पॉइंट लाइज आउट इनसाइड द सर्कल। इफ CP square minus R square less than 0 or S1 less than 0, then point lies inside of the circle, S is equal to 0. Correct? हेडिंग से इसमें पढ़ सकते हो पावर पॉइंट, समझा? यस। यस आपको एक सर्कल दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, आपका पॉइंट सर्कल के बाहर है कि अंदर है कि अंदर सर्कल है, कैसे पता चलेगा? सीधा पॉइंट को सर्कल के ऊपर डाल दो,
If it is greater than 0, your point lies outside of the circle, less than 0 inside of the circle, equal 0 on the circle. और जो आप निकाल रहे हो S1, that S1 is always CP square minus R square. That is called power point. सर अगर कोई पॉइंट सर्कल है और S1 0 है तो वो सर्कल ही पॉइंट होगा। क्या S1 0? सर अगर S1 0 है और पॉइंट सर्कल है तो वही सर्कल और पॉइंट सेम ही होंगे ना। हाँ होगा, ये केस में रियल सर्कल है। पॉइंट सर्कल इज द एक्सेप्शनल केस, वो हमेशा नहीं, मतलब ये नहीं होता है। सर्कल दिया जाएगा मतलब रियल सर्कल दिया जाएगा। सर ऊपर से कॉपी करना बाकी है। सर हम्म। सर 1 सेकंड ऊपर करो ना। डन सर। हो गया सर। तो सर्वे
सर 2 लाइन ऊपर करो ना. डन. सर लास्ट 2 लाइन बाकी है. Using 1 point, how many circles you can draw? What, sir? Infinite. Using 1 point, कितने सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हाँ सर इनफाइनाइट. हो? इनफाइनाइट. 2 8 पॉइंट्स, circles. एक ही सर्कल. ऐसा सेंटर या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने. हाँ सर इनफाइनाइट होगा. हाँ सर इनफाइनाइट है वो तो. अच्छा हाँ सर इनफाइनाइट ही होगा. Using 2 points, एक ही होगा सर. एक ही होगा. सर मतलब दोनों को Using 2 points, how many circles you can draw? हम्म. सर उसका इन्फिनिट हो सकता है 2 पॉइंट्स का. हाँ सर कोई कंडीशन नहीं है तो फिर इनफाइनाइट. कैसे, मतलब मैं चलता रहूं, मतलब सर्कल्स बनाते रहेंगे ना. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. Using 3 points, से एक ही बनेगा. हाँ सर. using 3 points, non-collinear 1 points. सर्कल. 1 सर्कल. 3 non-collinear पॉइंट में क्या होता है? ट्रायंगल बनता है. हाँ सर. Yes, sir. और every triangle has one Yes, circumcircle. हाँ सर. हाँ So सर. using 3 points, you can draw only one circle. ठीक है. देखो Okay, आपके जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कितने अननोन्स है, कितने अननोन कांस्टेंट्स है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कितने अननोन्स है, अननोन कांस्टेंट्स? 3. क्या क्या? 3 हाँ सर. GFC. जीएफसी. तो 3 पॉइंट दिया जाएगा तो आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगे. हाँ सर. हाँ सर. तो 3 इक्वेशन से आप 3 अननोन को सॉल्व कर सकते हो. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. तो इसीलिए जितने अननोन्स होते हैं, जितने अननोन कांस्टेंट्स होते हैं, उतने पॉइंट्स आपको चाहिए टू सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है. तो 3 points, any 3 non-collinear points, using any 3 non-collinear points, you can draw one circle. 4 points में using 4 points, 1 सर्कल. one circle. सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. सपोज ये 3 पॉइंट मैंने दे दिया, एक सर्कल बन गया. अभी इधर पॉइंट दूंगा तो हाउ कैन यू ड्रॉ सर्कल? अच्छा हाँ. तो यूजिंग 4 पॉइंट्स सर्कल में भी पॉसिबल, मे नॉट भी पॉसिबल. इधर होगा तो पॉसिबल हो जाएगा, हाँ सर. इधर होगा तो पॉसिबल नहीं होगा. इफ पॉसिबल, देन these points are called
कॉन्सेक्ट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स को कॉन्सेक्ट्रिक नहीं बोला जाता है, क्योंकि एनी 3 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन सर्कल, बट 4 or more than 4 points circle may be possible, may not be possible. If possible, then points are called concentric points. समझा? हाँ सर। हाँ सर। So you can make it note. Using 1 or 2 points we can draw infinite number of circles. Using any 3 non-collinear points we can draw only if a circle passing through 4 or more given points, then those points are called concyclic points. Clear? यस सर। तो मैं आपको आई विल गिव यू 3 पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। कुछ भी आइडिया करो, कैसे भी करो, जस्ट फाइंड आउट। Find equation of circle passing through points 2, -1, 3, 0 and 1, 1. आप कैसे निकालोगे, दैट इज अप टू यू। कुछ आइडिया करो एंड फाइंड आउट। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था, ठीक है। और एक बार बता दूंगा मैं। What did you सर आपका कोई आपका भी voice 2 बहुत पॉइंट lag जो हो रहा आपको है। हाँ इजी सर लग लैग हो रहा रहा है, है बहुत। कंसीडरिंग दैट 2 points as end point of diameters, अभी भी लैग हो रहा है। नहीं सर अभी नहीं। Considering any 2 points out of 3 points, जो 3 पॉइंट दिया गया, taking any 2 points as end point of diameter, draw one circle. तो आप कोई भी इजी पॉइंट को इजी 2 पॉइंट्स ले सकते हो, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेके एक सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ
diameter are x1 y1 and x2 y2 is x minus x1 into y x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. तो ये सर्कल का इक्वेशन मिल गया. सेम दो पॉइंट लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 is equal to slope. स्लोप कितना होगा? 0 minus 1 minus 1 upon 3 minus 1 2 into x minus 0, sorry x minus 3, correct? Yes, sir. मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i is equal to minus x plus 3 implies x plus 2i minus 3 is equal to 0. This is the straight line equation. तो जो दो पॉइंट लेके सर्कल बनाए थे एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेके, वही दो पॉइंट में एक लाइन का भी बनाओ. अब ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? लेट अस टेक दिस इज s. ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये तीनों क्या होते हैं? These three are under one family. एक फैमिली पर आ हाँ, sir. जाएंगे. C और ठीक B है? पॉइंट को सेटिस्फाई करता है. हाँ, तो दो पॉइंट पर सब पास कर रहे हैं ना, तो एक फैमिली पर आ जाएंगे. तो हाउ टू फाइंड एक सर्कल के साथ एक स्ट्रेट लाइन को कैसे यूज करोगे सो दैट अनदर सर्कल होगा? कहीं ना कहीं सर्कल यूज होगा, स्ट्रेट लाइन भी यूज होगा इस सर्कल के लिए, है ना? ये सर्कल क्या हो रहा है? ये सर्कल में पास कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में भी पास कर रहे हैं, तो ये दोनों का यूज होगा. तो एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक सर्कल के साथ एक स्ट्रेट लाइन को कैसे यूज करोगे अलजेब्रिक, यू विल गेट अनदर सर्कल. जैसे फैमिली ऑफ लाइंस में लाइन के साथ लाइन को कुछ मल्टीप्लाई करके लाइन ऐड किए थे कि सबट्रैक्ट किए थे, जो भी करेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रहा था. एक केस में क्या होगा? अच्छा, और एक छोड़ो. ये दो पॉइंट देके कितने सर्कल्स आप पास करा सकते हैं? इनफाइनाइट. ओके. दो सर्कल को कैसे मैनिपुलेट करोगे, कैसे कंबाइन करोगे? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. एक सर्कल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0. Another circle given x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0. ये दोनों को क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन मिलता है, डिवाइड. डिवाइड करेंगे. माइनस. हाँ, Yes. माइनस करेंगे. ये फर्स्ट माइनस सेकंड कर दोगे, आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म कट जाएगा. हाँ सर. तो आपका रेस्ट पार्ट क्या मिलेगा? एक्स टर्म, वाई टर्म एंड कांस्टेंट टर्म. यस सर. तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है S1 माइनस S2 होता है. ठीक है, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, सपोज दोनों सर्कल गिवन, S1 गिवन, S2 गिवन, देन हाउ टू फाइंड आउट L. तो L का इक्वेशन क्या होगा? S1 होगा, सॉरी L होगा S1 माइनस S2, करेक्ट. अच्छा, इसका उल्टा दिया जाएगा. अच्छा, दो सर्कल के इंटरसेक्शन में कितने स्ट्रेट लाइन होता है? एक. एक ही होता है. तो आपको ये जो मिलेगा ना, ये फिक्स वैल्यू मिलेगा, एक ही लाइन मिलता है. यस सर. अच्छा, मैं इसका अभी उल्टा कर रहा हूं. सर्कल दिया गया, स्ट्रेट लाइन दिया गया, इनके इंटरसेक्शन में और एक सर्कल जाएगा. S1 गिवन, L गिवन, हाउ टू फाइंड आउट S2? क्या करोगे? S1 plus L. S1 प्लस L कर सकते हो, मतलब S1 प्लस L कर सकते हो, बट S1
S1 गिवन L गिवन S1 प्लस L करोगे कितने सर्कल्स होते हैं? क्या सर? S1 गिवन L भी गिवन, तो इफ यू एडेड दिस टू आपको जो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा डेफिनेटली यू विल गेट वन सर्कल इक्वेशन, यस सर। बट वो कितने सर्कल्स का इक्वेशन मिलेगा? दो सर्कल नहीं, एक ही का मिलेगा। S1 गिवन ना, ये भी दिया गया ये भी दिया गया। सपोज S1 आपको दिया गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट अस टेक L गिवन x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ यू एडेड दिस टू तो आपको क्या मिल रहा है? x S2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल 0। ये कितने सर्कल आपको दिलाएगा? एक ही देगा ना सर? एक ही देगा, बट ये दोनों पॉइंट पे आप कितने सर्कल पास करा सकते हो? इनफाइनाइट। तो आपको तो एक ही मिल रहा है, तो क्या करेंगे? दो सर्कल के इंटरसेक्शन में एक ही स्ट्रेट लाइन जाता है, तो आपको एक ही मिला। दिस इज करेक्ट, बट इसको उल्टा करेंगे तो करेक्ट नहीं होगा। हाँ सर। वो क्या क्या हाँ, सर, इसको समझा। इधर ले लिया ना, उल्टा करेंगे तो करेक्ट नहीं होगा। उल्टा करेंगे तो क्या होगा? आपको एक ही सर्कल दे रहा है, whereas आप ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास करा सकते हो। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द आंसर, नॉट ऑल आंसर। ऑल आंसर के लिए क्या करेंगे? S1 प्लस लैम्डा। हाँ सर, हाँ समझा। यस। S1 समझा। प्लस लैम्डा एल। यहाँ पे एल लिखो कि लैम्डा एल लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। क्योंकि नहीं जीरो है सर। ना, हाँ सर। तो लैम्डा एल करेंगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी उल्टा कर दो चलेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा? डिफरेंट अल्फा लैम्डा इज व्हाट? यानी रियल नंबर। तो डिफरेंट लैम्डा के लिए आपको डिफरेंट सर्कल मिलता जाएगा। ओके। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आपको मिलेगा। अच्छा, बट वो सर्कल का फिर ज्यादा क्या होगा? इधर लिख देता हूं, मतलब फिर और, लेकिन हमें तो रिक्वायर्ड सर्कल फिर कैसे मिलेगा? तो यूज S इज इक्वल टू S1 प्लस लैम्डा L, जो आपको S चाहिए। हाउ टू गेट लैम्डा? लैम्डा अननोन हुआ, हाउ टू गेट लैम्डा? यहाँ पे जितने सर्कल पास होंगे, हर सर्कल क्या 2, -1 में पास करेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो 2, -1 में एक ही सर्कल पास करेगा, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना। अभी तक हम 2, -1 को यूज नहीं किए, अभी यूज करेंगे, ठीक है। तो S1 आपके लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यूज 2, -1 हियर, दैट इंप्लाइज क्या मिला? +5 -8 +1 +3 कितना हुआ? 1। इसमें डालेंगे तो 2 -2 कैंसिल्ड -3, समझा? हाँ सर। इक्वल 0। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हुआ? 1/3। अब डाल दो। सो S क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई प्लस 3 प्लस 1/3 x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 implies 3x स्क्वायर py स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 11x माइनस 3y प्लस 2y माइनस y प्लस 9 माइनस 3 प्लस 6 इक्वल, करेक्ट? हाँ सर।
इसका टाइम हो गया. नेक्स्ट और एक मेथड भी है, विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. Okay, sir. Bye, sir. Okay. Thank you, sir. ओके सर. फर्स्ट मेथड रिकॉर्डिंग बंद था इसलिए बोल रहा हूँ. फर्स्ट मेथड क्या क्या है? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी. उधर से आपको एच कमा के मिल जाएगा, रेडियस भी मिल जाएगा. सेकंड मेथड, जनरल इक्वेशन में तीनों पॉइंट को यूज करके हम जी एफ सी तीनों वैल्यू निकालेंगे. यू विल गेट योर आंसर. एंड दिस इज द थर्ड मेथड. करेक्ट? Okay, sir. ओके. थैंक यू. Bye, Bye. sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर. Bye, sir. Thank you.